So students, my today's topic is indifference curve. Indifference curve is also a theory for your consumer's equilibrium. And so what is the indifference curve? So look the definition now. An indifference curve is a curve that represents all those combinations of two goods which give equal satisfaction to the consumer. The consumer has no reason to prefer one particular combination to any other combination on the same curve. It means जो भी आपने combination choose किया है, आप ऐसा कोई रीजन नहीं हुआ कि उसको छोड़कर आप दूसरे की ओर जाएंगे. So he is indifferent towards various combinations on two goods which giving same level of satisfaction. So how it can be possible? So I am explaining it with the help of an schedule. So look what is the schedule now. Look students, most important concept I am explaining now. Suppose these are the combinations A, B, C, D, E. Good, I am taking two goods, good X and good Y. You can also name them if you want. And marginal rate of substitution. So this indifference curve is based on the theory that your marginal rate of substitution always decreases. So take it as first dash, then let's say 4 1 3 1 2 1 1 1. I'm taking just as example, taking the marginal rate of substitution as decreasing. So now look, now for the better way to understand, just you take the good X now. So let's say the MRS में जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है उसका सम कर लें, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 और ऊपर भी क्या होना चाहिए इनविजिबल वेब में 5. तो हम सबका प्लस कर लेते हैं. 5 + 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15. सो 15 and 1. हम क्योंकि इसमें टू गुड्स का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है तो हमने इसको 1 लेट कर लिया है. नाउ if this is the first combination consumer is preferring. Now if you want to increase good Y, then you will have to sacrifice good X. So how much you will increase and how much you will sacrifice, it will depend on marginal rate of substitution. So this is the 4 1. Look what I'm just telling to you. This is the 4 1. ये वाला 4 इस 15 में से कम कर लो. So it will be now 11. और ये वाला 1 इस 1 में ऐड कर लो. It is now 2. इस प्रोसेस को आप सेम करते रहे. अब 3 है, इसमें से 3 लेस कर लो. 8. 1 1 इसमें ऐड कर देंगे. 2 2 6 1 फिर से ऐड कर दिया. नाउ 1 5 और 5. This is your schedule for indifference curve. Now draw a diagram on this basis. So look how the diagram I am drawing here. Suppose here I am taking good Y. आप नाम भी दे सकते हो. इधर हम मैंने गुड X ले लिया. अब गुड X 15 है तो 3 6 9 12 15. ये जो वैल्यू होती है वो नहीं ली जाती, आप अपने रेशो के हिसाब से लेंगे. सो हमने 3 3 का गैप लेके वैल्यूज को पूरा किया. इधर 1 2 3 4 5.
Now put the values and take on x and y axis. 15 for good x and 1 for good y. So good x I have taken on x axis. आप चाहे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इनको नाम दे सकते हैं. Suppose this is apple and this is orange. So good y is orange and this is apple. So एप्पल 15 है, 1 ऑरेंज, तो एप्पल 15 इधर और 1 ऑरेंज ये, तो इसका पॉइंट इधर हो गया. नाउ 11 एप्पल 2 ऑरेंज. सो 11 एप्पल 2 ऑरेंज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा लाइक दिस वन. 8 और 3, 8 इधर हो गया 3. 6 4, दिस इज नाउ 6 4 and 5 5. So now join all these diagram freehandly and it should be a like curve shape like this one. इनको हमने कर्व की शेप में एक ज्वाइंट कर दिया. नाउ दिस इज इंडिफरेंस कर्व, कॉम्बिनेशन A, B, C, D and E. So this is indifference curve schedule and indifference curve diagram. So what the conclusion you are observing here? Conclusion is this, that MRS should be decrease. आप अगर MRS डिक्रीज नहीं करेंगे तो आप ऐसा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बना पाएंगे इंडिफरेंस के लिए. सेकंड है कि टू गुड्स मस्ट बी कंज्यूम्ड. ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक को जीरो कर लें. आपको टू गुड्स एक साथ कंज्यूम करनी जरूरी है. नेक्स्ट है कि आपके पास कंज्यूमर रेशनल है. कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, इसका मीनिंग उसे अच्छे बुरे की नॉलेज होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए. तो दिस इज इंडिफरेंस कर्व. नाउ लेट्स बैक टू द योर assumptions which I have written here. So look the assumptions now. Assumptions are here two commodities. That means there is only a two commodity must be there. So it is assumed that consumers' money is fixed and entire amount must be spent on the consumption of two goods given constant prices of both the goods. आप प्राइस भी चेंज नहीं कर सकते, आप इनकम भी चेंज नहीं कर सकते. जो भी पैसे हैं सारे पैसे खर्च करेंगे टू गुड्स पर. नॉन सेटिटी, दैट मीन्स कंज्यूमर कभी भी 100% सेटिस्फाइड नहीं होता है. आप किसी को भी कितना भी दे दो लेकिन उसको कभी भी आप 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, ऐसा माना जाएगा. फिर है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी बताया आपको कि जो MRS है, MRS वो डिमिनिशिंग होना चाहिए. नेक्स्ट रेशनलिटी मैंने बता ही दिया. ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल होनी चाहिए. आपको हमने पहले बताया था कार्डिनल, यहाँ है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल का मतलब है कि आपकी जो यूटिलिटी है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ वे दैट कंज्यूमर प्रेफर्स मोर देन द लेस. सो अगर हम पिछले एग्जांपल में देखें तो कंज्यूमर के पास कुछ बंडल्स थे. 15 एप्पल 1 ऑरेंज, देन 11 एप्पल 2 ऑरेंज, then 8 and 3, उसके बाद 6 and 4 and last में 5 और 5. These are the combinations and look the way of these combinations. So which combination consumer is preferring first? So he is preferring the highest quantity. So look the 15 and 1, it is the overall highest quantity he is gaining. So 16 total चीजें मिल रही हैं, ज्यादा चीजें उसे मिल रही हैं, तो इसलिए उसने इस चीज को इसको उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, इसको उसने सेकंड प्रेफरेंस दिया, ये थर्ड प्रेफरेंस है, दिस इज द फोर्थ प्रेफरेंस एंड दिस इज द लास्ट प्रेफरेंस. सो लास्ट में देखिए उसको सबसे कम प्रेफरेंस वाले को दे रहा है वो, तो दिस इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो ऑन दिस बेसिस यू विल हैव टू ड्रॉ डायग्राम एंड टेबल, जो अभी हमने बताया आपको. तो इसलिए असाइनमेंट में हमने आपको ये स्पेस दिया हुआ है, तो इसमें आपको इसका टेबल और डायग्राम बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व. नाउ आफ्टर दिस
there are some properties for indifference curve. So look the properties for indifference curve. The properties for indifference curve are here. I have given 4 properties of indifference curve. The first one is, as on your assignment you can see, the first one is indifference curve always slopes downward from left to right. So look how this is possible. So first property is that your indifference curve always slopes downward slopes. So look, this was your indifference curve. Previously, on the previously slide, I draw this taking 2 goods, like here we will take here orange and apple. So look, this indifference curve was this one. So this is downward sloping. So why this always slopes downward? So it slopes downward because of MRS decreasing, or you can say diminishing MRS. सो आपका जो MRS है वो डिक्रीज होता है, इसलिए ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप करता है. अब बात आती है कि डिक्रीज क्यों करता है MRS. तो कंज्यूमर इज रेशनल. सो टू इंक्रीज गुड X, टू इंक्रीज गुड X, उसको गुड Y को डिक्रीज करना पड़ेगा. गुड Y हैज टू बी डिक्रीज. अगर एक गुड्स बढ़ानी है तो दूसरी गुड्स कम करनी पड़ती है, बिकॉज आपके पास गिवन इनकम है. आपके पास मैंने लिया गिवन इनकम है, प्राइसेस हैं, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई वो भी आपके फिक्स हैं, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते. और आपको एंटायर मनी स्पेंड करनी है. और अगर आप पहले कॉम्बिनेशन में सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, सपोज एट दिस कॉम्बिनेशन पर आपने सारे पैसे खर्च करके ये कॉम्बिनेशन लिया है, तो अब अगर आपको इस गुड्स को बढ़ाना है, सपोज यू वांट टू इंक्रीज दिस वन, तो आपको ये तो कम करनी ही पड़ेगी ना. लुक एट दिस, ये आप कम करोगे तभी आप ये इंक्रीज करा सकते हो. ऐसे अगर आप इसको और इंक्रीज करना चाहते हो सी पॉइंट पे, ये आपने और इंक्रीज किया, तो इसको आप और डिक्रीज करना पड़ेगा, लाइक दिस वन. सो दैट्स व्हाई इफ वी आर, लुक एट दिस, वी आर इंक्रीजिंग गुड एक्स और ऑरेंज. ऑरेंज देखिए पहले हमारा एक्स था, x1 हुआ, x2, ये ऑरेंज की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो एप्पल की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. मान लीजिए यहाँ पर गुड y है, ये y, y1 and y2. तो look, this is decreasing and this is increasing. So thus I have explained here that good x increase होगी, good y decrease होगी, इसलिए आपका MRS decrease होता है. So that's why your indifference curve slopes downward. So you will have to draw diagram for this one. Indifference curve downward slope होने का. इसके बाद second आपके पास property है. Look, I'm explaining here. Look, this is your second property. Look, higher indifference curve represents higher level of satisfaction. That means आपका higher indifference curve जितना ज्यादा अप होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास satisfaction higher होगा. कैसे? तो देखिएगा. Suppose these are the sum of the indifference curves. Suppose here good y, here good x. Never leave these x and y axis blank. Suppose these are the sum of indifference curve. IC1, IC2, IC3. And suppose here are the sum points A, B, and C. A, B, C. A point. This is, let's say, B point. And this is C point. So suppose this is good X
x1, x2, and this is y, y1, y2. So look, if you will draw the suppose points, you will take, let's suppose 2, 4, 6, 8. Here 1, 2, 3, 4, or 5. At point A, IC1, you are using 3, suppose apple and orange. You are having 3 apple and 4 oranges. Look this is the combination, 3 apple and 4 oranges, this combination. Look this. On point B at IC2, you are having 4 and 6, and on IC3, 5 and 8. So out of these 3 bundles, which bundle has the highest goods? Naturally 5, 8 is the highest one. This is the first preference. So consumer would like to go this combination 5, 8, and this is on point C, and point C on IC3, and IC3 is the higher one. It shows that higher IC will represent higher level of satisfaction. So this is the second property for your indifference curve, that higher IC will give higher level of satisfaction. Now the next property is indifference curve slopes convex. Your indifference curve always slopes convex. Convex, this is a slope of convex like this one, convex. And concave, this is the concave slope. So why it is not going concave? Why it is going convex? So convex going only because of the previous example, we have already explained this. So because of decreasing MRS. So you will also only know this, that MRS decrease होगा. MRS decrease क्यों होगा? Because same reason इसका, good X increase करेंगे तो good Y decrease होगी. That's why MRS decrease होता है. तो यहाँ आप mention कर सकते हैं good Y, इधर आप mention करेंगे good X. तो इसका कॉन्वेक्टिव होने का रीजन यही है, एक गुड्स को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी हम बढ़ाते हैं, और कंज्यूमर रेशनल है तो वो सेक्रीफाइस कम करेगा. मैं वो भी बताता हूं अभी आपको. नाउ लुक एट दिस, x1, x2, x3 and x4, y, y1, y2, y3. So look, the basic idea behind this is that when we increase good X and we decrease good Y, so in this process, the rate of gain increases. इसका मीनिंग आपका जो गेन है वो पहले के कंपेयर में बढ़ जाता है, and the rate of sacrifice that decrease. अब आप ध्यान से देखो, इसमें आपका ये बढ़ रहा है. Look what where I am writing. देखिएगा, ये look at the size of arrow. जब आप बढ़ा रहे हैं तो पहला एरो से दूसरा एरो ज्यादा बड़ा बन गया. इसका मीनिंग ये गेन है. गुड एक्स में आप ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो ये आपका गेन बढ़ रहा है. और जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो देखिएगा, पहले आपने ये इतना सेक्रीफाइस किया, उसके बाद ये, और अब लुक एट द साइज ऑफ एरो. आपका एरो का साइज छोटा हो रहा है, दैट मींस ये डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए कनकेव बना. और अगर ये एरो बराबर इस तरह से नहीं बराबर बनेंगे आपके, या ज्यादा नहीं होंगे, तो फिर वो एमआरएस डिक्रीज नहीं हो सकता उस केस में. तो बेसिक रीजन आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, इतना याद रखो कि ये एमआरएस डिक्रीज होने के कारण होता है. अब एमआरएस क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि रेट ऑफ गेन बढ़ता है और सेक्रीफाइस हमारा कम होता है. That's why IC slopes downward from left to right. So look in your assignment.
So this is the property I have explained to you, that indifference curve slopes always convex. So why convex? So look, I have just told you that MRS continuously falls. क्यों falls होगा? गुड X को हम more consume करते हैं तो हमारा लॉ ऑफ DMU फॉल करता है. अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर भी मैंने समझाया था उसमें, तो आप देखिए लेस यूनिट्स ऑफ गुड Y टू गेन मोर ईच ऑफ सक्सेसिव ऑफ कम्युनिटी Y. तो आप Y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसको इंक्रीज कर रहे हैं. नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर योर इंडिफरेंस कर्व. लुक, indifference curve never intersects each other. इसका मीनिंग आपके जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं. जैसे सपोज करो ये इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये मैंने यहां कट करवा दिया IC2. अब इस पे हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं. सपोज A, B and C. Here good Y and good X. Look, IC1 says, I have told you that on a single IC, each point gives same satisfaction. Look, the first slides I'm showing to you, these are first slides, that each and every point A, B, C, D, E, point A equals to B equals to C equals to D equals to E. Each and every point is given equal satisfaction. कोई भी दे दो, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टुवर्ड्स ईच अदर. दैट्स व्हाई इट इज बीन कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, कि वो इंडिफरेंट है किसी भी एनी कॉम्बिनेशन की ओर. आप उसे जो भी दोगे ही विल एक्सेप्ट इजीली. So that's why each and every point on a single IC will represent same level of satisfaction. So here IC1 says that A equals to B. IC1 पर देखिए दो पॉइंट है, एक ये A पॉइंट है, B है. तो इसका मतलब कंज्यूमर कहता है कि A और B में से मुझे कुछ भी दे दो, सेम सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है. बट ऑन द कंट्री IC2 says that C is equals to B. आप देखो ध्यान से. Now therefore A equals to B, C equals to B, therefore that means A equals to C. So what does it mean? It means that A and C is also giving same satisfaction, which is not possible because these are on different IC. And rule says that on a single IC, each point should give same satisfaction. But here, different IC is also giving same satisfaction. So this is not possible that each and every point will give same satisfaction. So these are the properties of indifference curve. So you can take the screenshot of each and every slides I have told you. So just for revision purpose, take the screenshot for this one, students. First of all the students, please take screenshot, and you will have to draw these in your notebook and have to write the answers which we have given to you. I hope you have taken the screenshot. Now the second screenshot, this is the properties of indifference curve, and this is the first property, that IC downward slopes. So your IC always slopes downward. Hope you have taken the screenshot. And this one, that higher IC will represent higher level of satisfaction. And the last property, IC slopes convex. So sorry, third property here, IC slopes convex. It is not concave, it is not straight line, it is convex. And this one, IC never intersects each other. So these are the four properties of the indifference curve plus definition. So this is the topic for indifference curve. So students, your next question, your assignment is, what is monotonic preferences? So monotonic preferences is a NCERT question. It says that when between any two bundles, look, between any two bundles, one bundle has more of at least one good and not less any of the other good.
तो अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज को आप देखो, ये तो हुई इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज जो समझ में नहीं आती, अब मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज 10 9 एंड 10 10, so which bundle you would like to give first rank, or you want to pick first? Naturally this is bundle A and this is bundle B, so you would like to pick bundle B first because it has more of two goods and not less than of any other. तो आप एक गुड्स को एक्स्ट्रा लेने के लिए दूसरी गुड्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे. Look, if you have written like this one, that means you have monotonic preferences. So इसका मीनिंग ये हुआ कि आप अपने प्रेफरेंस को एक ऐसे ऑर्डर में लगाते हैं जिसमें आपको कुछ ज्यादा मिले बट कुछ सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े, तो आप कहलाते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाले. तो आप देखिए, आपने इस बंडल में इस गुड्स के कंपेयर में, इस 9 के कंपेयर में इसको एक्स्ट्रा तो लिया, 10 ले ली, बट इसके आपने कोई गुड्स कम नहीं किए. तो ये आपकी 10 की 10 ही रही और ये आप एक बढ़ गया. दैट्स मींस ये आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे. दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. अब हमारा असला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बजट सेट एंड बजट लाइन. सो लुक, व्हाट इज द बजट सेट एंड बजट लाइन? Look students, most important topic for budget line. Let you have income ₹40. अब अच्छे से सुनना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके पास 40 रुपए हैं और आप एप्पल 5 रुपए का एक है और ऑरेंज सपोज 2.50, 2.5 रुपए का एक है. नाउ बंडल्स. लुक, अगर आपने सभी पैसों से, जो भी आपके पास 40 रुपए थे, सभी पैसों से आपने एप्पल परचेज कर लिए, तो हाउ मेनी एप्पल यू कैन बाय? कोई बताएगा? 8. वेरी गुड, 8. ठीक. तो पहला है आपको कि 40 रुपए आपके पास है, 5 रुपए का एक है, तो यू कैन बाय 8 एप्पल्स. नाउ हाउ मेनी ऑरेंज यू कैन बाय? 16. दुकान आपकी अपनी है, आपके अपनी खुद की दुकान है, तो फिर तो आप बाय कर सकते हैं, सब कुछ आपका अपना हो गया. अरे बेटे, जब आपके सारे पैसे यहाँ खर्च हो गए तो आप कैसे ऑरेंज परचेज कर सकते हो? भाई आपने 40 रुपए थे, 40 रुपए से आपने सबके एप्पल खरीद लिए, तो ऑरेंज कहां से लोगे? यू कैन नॉट बाय ऑरेंज, सो योर ऑरेंज विल बी 0. नाउ अब अगर आपको ऑरेंज बाय करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? एप्पल 0 एंड ऑरेंज 16. तो एप्पल कम करने पड़ेंगे आपको, तभी आप ऑरेंज परचेज कर सकते हैं. सपोज करो आपने एक एप्पल कम कर लिया, 7 बाय कर लिए, तो अब कितने ऑरेंज बाय कर सकते हो? 2. वेरी गुड, आपने 2 ऑरेंज बाय कर लेंगे, क्योंकि 5 रुपए बच गए, 5 रुपए के 2 आ जाएंगे. इसी तरह से अगर आपने एक और एप्पल कम किया, तो अब आप 4 बाय कर सकते हैं. आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करिए. ये हो गया 6 5 4 3 2 1 0. ऐसे इसको बढ़ाएंगे 4 6 8 10 12 14 और 16. ऐसे ही आप इसको बढ़ा लेना. So this is your budget set. So what the budget set? So budget set tells you that how much you can buy with the given income and prices. कि आप कितना बाय कर सकते हो. अब अगर आपने इसके बेस पर एक इसके बेस पे आपने एक डायग्राम बनाया. सपोज यू आर राइटिंग हेयर ऑरेंज
ऑरेंज 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 से आप 16 तक लिख लेना। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर है आपके एप्पल। अब अगर आप पॉइंट लेके डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ कुछ कैसा बनेगा। देखिए 8 एप्पल ऑरेंज 0, सो 8 एप्पल ऑरेंज 0, ये पॉइंट इधर आएगा। 7 एप्पल 2 ऑरेंज, 7 एप्पल 2 ऑरेंज, ये पॉइंट इस तीसरा पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9 और लास्ट का पॉइंट। तो सभी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से आपके आ जाएंगे। सो दिस इज योर बजट लाइन। So what the budget line states? So budget line tells you that how much you can buy. So suppose A B C D आपके हो गया था, उसके बाद E F G H I J। अब सपोज कोई पॉइंट यहां पर है K। So can you buy this point? You cannot buy this because this is out of your budget line. So budget line tells you how much you can buy with your given income and resources. So now let's move on the definition for this of your budget line. So students, have a look here. So what the budget set? तो budget set is a collection of all bundles, जो भी हमने bundles बनाए थे ABCD, of two goods that consumer can buy with given income and market prices। तो जो हमने अभी लेट किया था प्राइस और इनकम, उसके बेस पे कितना कितना बाय कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करना बजट सेट कहलाता है। अब बजट लाइन देखिए, तो अब बजट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल बंडल्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम एंड रेंट। तो सेम है, इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसमें टेबल बनाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो बजट सेट का मतलब क्या है? टेबल बनाना, और बजट लाइन का मीनिंग उसका डायग्राम बनाना, बस इतना डिफरेंस है। अब हमने एग्जांपल लिया था, जो अभी देखिए एग्जांपल एट एग्जांपल, उसके आपके पास एक बजट है 50 का, हमने क्या बजट लिया था? 40 का लिया था, यहाँ पर 50 का बजट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अलजेब्रिक कंडीशंस आप देख सकते हैं। तो ये बजट सेट है, मनी इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। इट मींस कि आप कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं एक्स की और कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं गुड वाई की। तो दिस इज योर बजट इक्वेशन ना। अब है स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला है माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। तो दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो दो चीजें याद रखना, बजट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और बजट लाइन का स्लोप। तो इक्वेशन और स्लोप दो है। इसके बाद होता है आपके पास नेक्स्ट MRE क्या है? तो ये भी इसी से रिलेटेड पॉइंट है हमारा। MRE मार्जिन रेट ऑफ एक्सचेंज। तो कितनी गुड्स आपने एक्स की बाय की, कितने गुड वाई की बाय करेंगे, उसका रेशो वही MRE कहलाता है। दैट मीन्स PX अपॉन PY आपका MRE होता है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, प्राइस रेशो MRE कहलाता है। इसके प्रॉपर्टीज है कि द इट स्लोप्स बिकॉज एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन कैन ओनली बी परचेज व्हेन गुड टू बी बाइंग लेस। तो पहला है कि अगर आप एक को एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, अभी आपने बनाकर देखा। एनी कॉम्बिनेशन आउटसाइड, अगर बजट लाइन के बाहर कोई कॉम्बिनेशन है तो उसे आप परचेज नहीं कर सकते हैं, और अगर अंदर है तो इसका मतलब आप पूरे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। ये है हमारे कुछ इसके मेन प्रॉपर्टीज। सो दिस इज बजट लाइन एंड इन डिफरेंस कम्स टुडेस टॉपिक। सो now we are taking one example for you, so wait for so this is NCERT question number 4, and question says a consumer wants to consume two goods, the price of two goods are 5 4 and 5। इसका मीनिंग एक गुड्स का प्राइस 4 है, दूसरी का 5 है, कंज्यूमर की इनकम 20 है। सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। सो इक्वेशन क्या होगी? तो मैंने बताया था मनी इक्वल्स टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। दैट मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 इक्वल्स टू आपके पास क्या है? प्राइस गिवन है,
So 4x plus or 5y. This is the equation of money. Now the second thing, how much good one can the consumer consume if she spends entire income on that? अब गुड वन का प्राइस क्या है बेटे 4. तो अगर 4 रुपए आपके पास है और 4 रुपए की एक है, 20 रुपए आपके पास है, तो आप कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो? तो गुड वन की कितनी आएंगी बेटे बोलो? 5. तो इसका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का 5 यूनिट्स और 5 क्वांटिटी जो भी है 5 आप परचेज कर सकते हैं. तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है थर्ड आपका कि हाउ मच गुड टू, अगर सारे पैसे गुड टू पे खर्च करते हैं तो कितनी गुड्स आएंगी? अब गुड टू का प्राइस क्या है 5 रुपए, तो कितनी गुड्स आ जाएंगी इसकी? अब 5 रुपए की एक है तो 4 यूनिट्स. ठीक. अब स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी मैंने माइनस में px अपॉन py. इसका मीनिंग बताइए, x का प्राइस क्या है? एक गुड्स x मान लेते हैं 4 और दूसरी गुड्स का प्राइस क्या है 5, ये माइनस में. तो फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस 0.8. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, इस तरह से क्वेश्चन को करना था. तो हम बजट लाइन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी आप क्या करें,